Hello everyone, welcome to session. So in this session we're going to discuss linear equation. So let's first understand what is linear equation. Let's see the definition of linear equation. So a linear equation is one where each variable occurs only in its first power and not in any higher powers. So for example, 2x plus y equals to 3. So this is the equation. Here you can say x and y are the variables and variables has power as 1. Variables has a power as 1, so this equation will call the linear equation. So linear equations will not have linear equations variable will not have power more than 1. ठीक है, इनकी power 1 होगी. And one more thing, you might have learned this thing in your lower classes, that number of unknowns in a equation. Like in this equation there are two unknowns, so to figure out the value of these two unknowns you will need at least two equations, right? So जितने number of variables तुम्हारे होंगे उतनी इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी उन अननोन्स को सॉल्व करने के लिए. तो वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी है. लाइक फॉर सॉल्विंग वैल्यूज ऑफ टू अननोन्स वी नीड टू इक्वेशंस, टू कंडीशंस गिवन इन द प्रॉब्लम एंड विल बी फिगर आउट द सॉल्यूशन फॉर दोज अननोन्स. सिंपल. तो डेफिनेशन इज क्लियर कि लाइक जो हाईएस्ट पावर होगी तुम्हारी वो 1 होगी वेरिएबल्स की, एंड जितने वेरिएबल्स होंगे लाइक सपोज 2 वेरिएबल्स हैं, तो टू सॉल्व दोज वेरिएबल्स, 2 अननोन्स आर वेरिएबल्स, कुछ भी बोलो उनको, यू विल रिक्वायर 2 इक्वेशंस. अगर 3 अननोन 3 वेरिएबल्स हैं, यू विल नीड 3 इक्वेशंस टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ दोज अननोन्स. सिमिलरली लाइक जितने तुम्हारे अननोन्स होंगे उतनी इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी टू फाइंड द सॉल्यूशन. एग्जांपल देखो, दिस इज द इक्वेशन 5x plus 24. दिस इज योर इक्वेशन 5x plus 24 एंड इस इक्वेशन में क्या है, 5x plus 4 equals to 24. One variable, so one equation is sufficient to find the solution of this equation. So that is x equals to 4. X equal to 4 is the solution of this equation. And if you see the second equation, there are two variables x and y. So to figure out the solution of this equation, you will need two equations. Is the like x y का solution निकालने के लिए you will require two equations. So these are the two equations, and let's see how we'll find the solution of these equations. So there are two methods. There are two methods to find the solution of the equations. One is substitution method. I hope you already know, but I am explaining this, so make sure you understand if you don't know this thing. Other method is your subtraction method or reduction of the equations, you can say subtraction method. So first is substitution method. So let me explain substitution method, then we'll see the second method. So substitution method is simple, like this is 3x plus 2y equals to 24, and second equation is 2x plus y equals to 15. What you will do, you can find value of x or y from one equation and you can put in the second equation. So let's say find the value of y from the second equation. This is the first equation, this is your second equation. Let's find the value of y in terms of x from the second. फर्स्ट से भी फाइंड कर सकते हो, जिससे सिंपल लगे उससे कर सकते हो. तो ये मैंने फिगर आउट कर लिया, एंड नाउ आई विल पुट दिस इन द फर्स्ट इक्वेशन. इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा. तो दिस इज 3x प्लस 2, y is 15 minus 2x equals to 24. So this will give me 3x plus 30 minus 4x equals to 24. That is minus x, and this is minus 6. So x equals to 6. Now I have figure out that x की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, I will get the value of y. That is y equal to 15 minus 2 into 6, that is 3. तो तुम्हारा like x का वैल्यू 6 आ गया और y का वैल्यू 3 आ गया. दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. नाउ सी द सेकंड मेथड, लाइक रिडक्शन मेथड और सब्ट्रैक्शन मेथड, तुम कुछ भी बोल सकते हो उसको. इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द अप्रोच. तो 3x plus 2y equals to 24 and 2x plus y equals to 15. So this is equation. Now what is this method? Second method तुम्हारा क्या है? I will try to make coefficient of x or y same. मैं किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर दूंगा. लेट्स ट्राई टू फर्स्ट y के कोफिशिएंट सेम कर देते हैं. लेट्स ट्राई टू मेक कोफिशिएंट ऑफ y सेम. y के कोफिशिएंट सेम करने की कोशिश करते हैं. तो अगर y के कोफिशिएंट सेम करोगे, सो दिस इज योर, यहाँ पर देखो 2 है. अगर सेकेंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दिस इज 4x, दिस इज 2y and 30. Now subtract first and second equation, like ये वाली इक्वेशन और ये न्यू इक्वेशन. दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन. फर्स्ट और थर्ड को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ जो नई इक्वेशन हमें मिली है. दिस इज 24
नाउ subtract, so this is x and this is 6. x का वैल्यू कितना आ गया 6, पहले भी 6 आ रहा था. नाउ यू कैन डू लाइक x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y का निकल आएगा. आइदर यू कैन अगेन यूज द सेम मेथड, x प्लस 2y. नाउ आई हैव टू फिगर आउट y, तो मैं x के कोफिशिएंट सेम कर दूंगा. x के कोफिशिएंट सेम करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना, इसको 6 बना देना, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड सेकेंड इक्वेशन को 3 से करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, x के कोफिशिएंट सेम करूंगा और x को कैंसिल आउट कर दूंगा, y कैंसिल आ जाएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 48 एंड तुम्हारा जो ये सेकेंड इक्वेशन, इसको मैं 3 से कर रहा हूँ, डेट इज 6x एंड 3y इक्वल्स टू 50. अब सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस एंड माइनस, सो दिस गेट कैंसिल्ड आउट. ओके, जस्ट अ मिनट, दिस विल बी 45 है ना, 45 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल्स टू तुम्हारा 3 आ गया. तो x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3 इज योर आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. दिस यू ऑलरेडी नो बट आई हैव एक्सप्लेन्ड एनीवे. जिसको नहीं पता वो समझ जाए. ठीक है, सिंपल थिंग, यू ऑलरेडी नो हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस. ओके, so this is the way. And one more thing, now let's understand what is linear simultaneous equations. Linear simultaneous equations is a system of equations. आगे definition तुम्हारे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है. Definitions like I would say are not that important. तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बेसिकली है क्या. ठीक है, I have taken these things from the note like books and definition मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि you can understood, you can read that again and again. ठीक है, पॉज करके तुम डेफिनेशन पढ़ सकते हो. पहले ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं, इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना सीखते हैं. सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन, है ना. डिग्री तुम्हारा जो पावर है इक्वेशन का, डेट इज 1. तो ये तुम्हारी लीनियर इक्वेशन है. तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंपलेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ. क्या करना है तुम्हें, 3x 24 को लेफ्ट साइड ले आओ. 27 को अगर लेफ्ट साइड में लाओगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा तुम्हारा. x इक्वल टू देखो कितना आ गया 8 एंड y इक्वल्स टू तुम्हारा 12. तो अब जो लाइन तुम्हारी बनेगी इस लीनियर इक्वेशन की, उसका जो इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पर देख सकते हो, x पर जो इंटरसेक्शन आएगा वो यहाँ पर आएगा 8, दिस इज 8. y पे जो आएगा वो 12 आएगा एंड दिस इज योर लाइन. ये तुम्हारी लाइन हो जाएगी. राइट, सो दिस इज द वे टू ड्रॉ लाइक लीनियर इक्वेशन ड्रॉ करने का तरीका है. तो अब देखो जरा, when two equations are considered simultaneously, जैसे ये दो इक्वेशंस तुम्हारी साइमल्टेनियस जो हमने पीछे सॉल्व की हैं, तो लाइक अगर तुम लाइन को कंसीडर करो, इफ यू कंसीडर दिस लाइन, सो दिस लाइन हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स. लाइन का कोई एंड नहीं है, दिस लाइन हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स, है ना. एंड इस लाइन का भी सिमिलरली, अगर ये दूसरी लाइन का भी फिगर ड्रॉ करूं तो इस लाइन का देखो क्या आएगा, 2x/15 y/15 इक्वल्स टू 1. तो इसका देखो आएगा 7.5 एंड y15. तो x पे 7.5 पे कट करेगा, स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, और y पे 15 पे कट करेगा. तो दिस लाइन इज ऑल्सो इनफाइनाइट. इस पे इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं इस लाइन पर, जैसे पीछे वाली लाइन है, इनफाइनाइट पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं. बट अगर इन दोनों को मैं लाइक साइमल्टेनियसली ग्राफ पर ड्रॉ करूं, तो वो वाली लाइन जो थी वो 8 और किस पे कट कर रही है, 8 और 12. तो ये लाइन देखो ऐसे कुछ क्रॉस करेगी, ऐसे. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन. फाइन, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अगर दोनों लाइंस को इंडिपेंडेंटली लो तुम, तो इस लाइन पे देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस लाइन को इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे. सिमिलरली अगर तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इस लाइन को भी इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. बट अगर दोनों लाइन को हम साइमल्टेनियसली ग्राफ पर ड्रॉ करें तो दे विल इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट एंड दिस इज द सॉल्यूशन जो अभी हमने फाइंड किया था. क्या था, x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 3. दिस वैल्यू विल बी, तुम चाहो तो ग्राफ ड्रॉ करके देख लेना किसी लाइक है ना, तो ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे, दिस पॉइंट विल बी द ये इंटरसेक्शन.
सो दीज टू आर द साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड इनका सॉल्यूशन है 6,3. So simultaneous solution of two equations is unique. So this is the solution of this simultaneous equation and इसका solution unique है 6,3 और कोई solution नहीं होगा इस equation. I hope this is clear. Simultaneous equations तुम्हें basically graph तुम्हें समझ में आना चाहिए, that is important part. ठीक है, okay. Now अब एक और चीज देखो, will equations always give unique solution? जो अभी मैंने यहाँ पर दिखाया तुम्हें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है इन दो इक्वेशन से, तो क्या हम ऐसे कोई भी रैंडम इक्वेशन लिख देंगे और उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे? दिस इज द क्वेश्चन. सो दिस इज द आंसर फॉर, ये आंसर है तुम्हारा. दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज. इफ यू राइट एनी रैंडम इक्वेशंस, रैंडम टू इक्वेशंस, तो दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज. ठीक, थ्री पॉसिबिलिटीज है, जिनमें से एक पॉसिबिलिटी हमने डिस्कस की यूनिक सॉल्यूशन, जो भी हमने पीछे किया कि एक इंटरसेक्शन आएगा, दिस इंटरसेक्शन, this is the unique solution of simultaneous equation. But there may be inconsistent equations. Inconsistent equations, that means there is no solution. There may be infinite solutions. There may be infinite solutions. So let's discuss these cases individually. So first case, inconsistent equations. So the equations that have solution. देखो एक चीज मैं तो समझा देता हूँ यहाँ पर. The equations that have सॉल्यूशन, उसको कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं. दीज आर द कंसिस्टेंट इक्वेशंस. ये कंसिस्टेंट है एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट. तो ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. ठीक है, ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस है एंड दिस इज द इनकंसिस्टेंट. और बाकी ये तीन डिवीजन तो तुम्हारे हैं. नो यूनिक सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है. तो अब अगर हम ये यहां पर तुम देखो, इस इक्वेशन को भी डिस्कस करते हैं, बट पहले ग्राफ देखो. ये ग्राफ से तुम्हें क्या दिख रहा है? इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है ऑलवेज. जैसे तुमने लाइक रेलवे ट्रैक देखा हो, तो वो ऑलवेज पैरेलल होते हैं, दे विल नेवर मीट, है ना, दे विल नेवर मीट. तो अभी हमने पीछे देखा सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, दैट दे शुड इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, बट दीज आर टू पैरेलल लाइंस, दे विल नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, सेम एज रेलवे ट्रैक. तो अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, सो देयर विल नॉट बी एनी कॉमन सॉल्यूशन. सो दैट्स व्हाई देयर इज नो सॉल्यूशन. सिंपल. तो तुम्हें चेक करना है नो सॉल्यूशन. सो दिस इज द थिंग, लाइक 6x minus 10y equals to 15, 15x minus 25y equals to -9. ये इक्वेशन. अगर मैं इसको ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो दिस इज द लाइन एंड दिस इज द ग्राफ, और दोनों ही तुम्हारी पैरेलल हैं. अच्छा, अब पता कैसे करोगे इक्वेशन पैरेलल है? हाउ विल फिगर आउट दैट इक्वेशंस आर पैरेलल? ये देखो कंडीशन है, मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, और दिस इज जिस फॉर्म में लिखी उसी फॉर्म में लिख देता हूँ. ax प्लस बी वाई एंड पी क्यू आर, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू, सपोज दीज आर द टू इक्वेशंस. तो अगर a बाई पी एंड b बाई क्यू एंड c बाई आर, ठीक है, ये सिचुएशन है और दिस इज नॉट इक्वल, है ना, यही है, ये इक्वल है और बट सी आर इक्वल नहीं है. इफ दिस इज द सिचुएशन, then equations will be parallel and there will be no solution. अब इन लाइन का अगर चेक कर लो तुम, तो 6/15 है एंड -10/-15 है एंड 15/-19 है. तो अगर हम इसको चेक करें तो दिस इज 2/5 एंड 2/5. अच्छा, ये 25 है, सॉरी, दिस इज 25. दिस इज ऑल्सो 2/5. तो ये दोनों इक्वल हो गए, but this is not equal. So this is the situation, that's why these lines are parallel and they will not have any solution. एक तो ये चीज होगी. And one other thing that you will learn in the coordinate, but अभी मैं तुम्हें थोड़ा समझा दे रहा हूँ. कोऑर्डिनेट में चीज डिटेल में देखेंगे. स्लोप, देयर इज वन थिंग दैट इज कॉल्ड द, आई होप तुमने शायद पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, बट नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन अ सिंपल वे. जो लाइन्स होती हैं इनका स्लोप होता है, जनरली लाइक ग्राफ्स का स्लोप होता है. ठीक है, सो जो ये लाइन्स है इनका स्लोप होता है. इफ लाइन्स हैव इक्वल स्लोप, दैट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल. ठीक है, तो लाइक अब मैं तुम्हें पहले स्लोप निकालना भी दिखा देता हूँ. कोऑर्डिनेट में अगेन फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी भी इनफ है, जितना मैं एक्सप्लेन करूँ इतना ही स्लोप है तुम्हारा लाइन का स्लोप. तो अगर किसी लाइन का स्लोप निकालना हो लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का स्लोप निकालना हो, तो सपोज दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द इक्वेशन. सिंपलेस्ट तरीका देखो स्लोप निकालने का. क्या करना है तुम्हें, लाइन को y के फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन को y के फॉर्म में लिख लेना है.
तो अगर y के फॉर्म में लिखोगे तो दिस इज लाइक 15 माइनस 6x, है ना, ये आ जाएगा। y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, y प्लस वाई सिर्फ होना चाहिए, ठीक है। तो पहली तो बात है 10 हटाना है और माइनस भी है, तो -10 यहाँ से हटाना है, तो -10 विल कम दिस साइड एंड -10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई होप मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ, चेक करते रहना। तो y इक्वल्स टू 6/10x माइनस 15/10, so this is y equals to like 3/5 x minus this is your 3/2। अब इक्वेशन को जब ऐसे रिप्रेजेंट कर लोगे, जो x का कोफिशिएंट होगा, नाउ दिस वन, नाउ द कोफिशिएंट ऑफ x, this one is your slope of this line, fine, this is the slope of this line, and लाइन पैरेलल होने की कंडीशन होती है स्लोप लाइंस का इक्वल हो। अगर लाइंस का स्लोप इक्वल है, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, तो अगर लाइन का स्लोप इक्वल है देन लाइन विल बी पैरेलल। तो अगर मैं इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करूंगा y के फॉर्म में, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन, दैट इज अगेन। तो बेसिकली इक्वेशन को ऐसे याद रखो, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ऐसे याद रखो, और इसको आप कंपेयर कर लो गिवन इक्वेशन से। जैसे ये इक्वेशन है ना, इसी को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, दिस इज द इक्वेशन, नो दिस वन, ये पहली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन का ये है और इस इक्वेशन का ये रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं इससे, y इक्वल टू 3/5 x माइनस 9/25, ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन है y 3/x माइनस 3/2। तो एक तो देखो इक्वेशन का ये रिप्रेजेंटेशन है, एक ये रिप्रेजेंटेशन है लीनियर इक्वेशन का, दूसरा रिप्रेजेंटेशन है y इक्वल टू mx प्लस c। ये याद रखोगे तो तुम्हें स्लोप निकालना आसान हो जाएगा। अब देखो दोनों लाइन का स्लोप क्या है, 3/5 3/5। अगर दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है देन दोज लाइंस आर पैरेलल एंड दे विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, अब ये एक्स्ट्रा चीज मैं बता रहा हूँ, ये लाइक यू कैन से इस इक्वेशन से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा कोऑर्डिनेट का पार्ट है, बट क्वेश्चन इस पे आते हैं एग्जाम में। अगर सपोज तुम्हारी लाइन लाइक ये कंडीशन हो गई पैरेलल की, इफ लाइंस आर पैरेलल, दिस इज द कंडीशन, नोट डाउन दिस थिंग। ये कंडीशन है m1 m2 इक्वल टू -1, स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ये दो कंडीशन लिख लो, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन लिख लो कि y इक्वल टू mx प्लस c लिख सकते हैं, वेयर m इज अ स्लोप ऑफ द लाइन, एंड m निकाल लोगे, फिर m1 अगर इक्वल टू m2 होता है तो लाइंस आर पैरेलल, अगर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है देन लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आई होप पता होगा, ऐसे जो लाइंस होती हैं उनको परपेंडिकुलर बोलते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। मुझे जितना बताना था मैंने उससे ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, बट मेक श्योर नोट डाउन ईच पॉइंट्स, ये सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे, बट अभी के लिए ही नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। सेकेंड टाइप, डिपेंडेंट इक्वेशंस इनफाइनाइट साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। अब थोड़ा तुम ग्राफ से सोचो, अगर लाइन पैरेलल थी, अगर लाइन ऐसे पैरेलल थी तो नो सॉल्यूशन आ रहा था। अब अगर लाइक मेरे बताने से पहले तुम खुद से सोचो, पॉज करके यहाँ पर थोड़ा सा सोचो कि अब क्या सिचुएशन होगी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और कमेंट में मुझे बताना अगर तुमने गेस कर लिया है, अगर तुमने फिगर आउट कर लिया। तो आंसर ये है कि अगर लाइन क्या कर जाए, कॉन्साइड कर जाए, अगर लाइन तुम्हारी कॉन्साइड कर जाए देन दे विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देन दे विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए तो मतलब सारे पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं, सारे पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहे हैं, दिस मीन्स दिस लाइन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, तो इसका कंडीशन क्या होता है, इसका कंडीशन देखो लिखा है पीछे, तो ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, अगर ये तुम्हारी इक्वेशन है, एंड सेकेंड इक्वेशन इज पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर, देन a अपॉन p इक्वल्स टू b अपॉन q इक्वल्स टू c अपॉन r। When this condition is valid, your equations will have infinite solutions, fine, infinite simultaneous solution। अब अगर given equation को चेक करो, that is 3/9 and 7/21 and 21/63। तो अगर देखो तो this is 1/3, this is 1/3 and this is also 1/3, so 1/3 1/3, that's why these are the
these equation have infinite solution possible. एंड वन मोर थिंग, अगर तुम एक और चीज देखो तो ये दोनों इक्वेशन एक्चुअली सेम ही है. जस्ट अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारी. दैट्स वाई उनका ग्राफ भी सेम बन रहा है और दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ओके, तो दीज आर द कंडीशंस याद रखना. ठीक है, सारे कोफिशिएंट सेम होंगे, स्लोप सेम होगा, एवरीथिंग विल बी सेम. ठीक है, अब आते हैं लास्ट पार्ट जिसका हमने पहला इक्वेशन सॉल्व भी किया था, यूनिक सॉल्यूशन. वो ऑलरेडी तुम्हें सिचुएशन पता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी, बट फिर से यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूँ. तो अगर यूनिक सॉल्यूशन होना है लाइन का, इफ line need to have a simultaneous equations need to have a unique solution, then क्या होना चाहिए, ऐसे कहीं पर इंटरसेक्ट होना चाहिए, है ना. दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. तो लाइन पैरेलल नहीं होनी चाहिए, लाइन कोइंसिडेंस नहीं होनी चाहिए, लाइन लाइक अलोंग नहीं होनी चाहिए, है ना. देन लाइन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन. तो अब जैसे ये इक्वेशन है, अच्छा इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन देखो, ए एक्स, ये देखो, ये हमने कर लिया, ये कर लिया, और इसका कंडीशन है यूनिक का. दिस इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन में कंडीशन है a बाई बी नॉट इक्वल टू p बाई क्यू. ठीक है, तो बेसिकली लाइक 3x, अगर यहाँ पर चेक कर लो तो 3/4, 4/3, ये दोनों इक्वल नहीं है. सो दिस लाइन विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. ओके, तो अब अगर हम जरा इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखें तो सेम प्रोसीजर करें तो 25/3 and 25/4, 6 and 8. 25/3 कितना होगा, लाइक 8.33 आई थिंक, है ना, 8.33. so let's draw first line. so that is 8.3. x पे कितना इंटरसेक्शन आएगा, 8.33. y पे कितना आएगा, 6.25. सो लेट्स टेक 6.25. तो ये तुम्हारी कुछ ऐसे लाइन हो जाएगी. दिस इज योर पहला इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन अगर हम ड्रॉ करें, सेकेंड वन, x पे 6 आएगा, x पे यहाँ कहीं पे 6 आएगा, y पे 8 आएगा. तो अगर ये लाइन तुम ड्रॉ करोगे, दिस लाइन विल इंटरसेक्ट समवेयर. सो दीज लाइन्स हैव यूनिक सॉल्यूशन. और कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, दो तरीके, सब्स्टिट्यूशन एंड सब्सट्रैक्शन और रिडक्शन मेथड, जो मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दी. ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन इन पे कैसे आते हैं. आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है. ये वाला चार्ट याद रखना, इसको चार्ट से कई बार कैट में क्वेश्चन आ चुके हैं. मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. ठीक है, ये सारी कंडीशंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ग्राफ के साथ याद रखो, यू विल नेवर फॉरगेट एंड यू विल नेवर हैव एनी कंफ्यूजन्स. अगर सिर्फ ऐसे रटने की कोशिश करोगे देन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे एंड यू विल फाइंड द रॉन्ग आंसर. ओके, इन द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द वैल्यू शुड बी टेक फॉर द इक्वेशन टू बी कंसिस्टेंट. सो यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p such that these two equations are consistent. So for consistent equation need to have a solution, है ना. अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन. So for that we need to check the coefficient of variables and constant. So this is 2/p, 7/42, 115/690. This equation may have unique solution. This equation also may have infinite solution. But if you check these two, this is 1/6. This is also 1/6. So these two are equal. Then to equation to have a solution need to have infinite solution. तो equal हो जाएंगे. So 2/p equal to 1/6, p का वैल्यू 12 आ जाएगा. So for p equal to 12, these two equations are dependent and consistent, and so they have infinite solution, है ना. तो ये p equals to 12 के लिए इसके infinite solution हो जाएंगे. And one more thing टू एड ऑन, जो मैंने बोला डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट क्या होता है, जब इक्वेशन तुम्हारी ये कोइंसाइड होती है, ये इक्वेशन देखो पैरेलल बनेगी ना. अगर 12 वैल्यू पुट कर दोगे तो दिस इज 2 + 7y = 115, एंड इफ यू पुट 12 हेयर तो दिस इज 42 एंड दिस इज 690. अगर फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो यू विल गेट दिस इक्वेशन. सो दीज आर कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन. सो व्हेन लाइन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, when two equations have infinite solution, then those equations are called dependent and consistent. ठीक है, ये अगेन वर्ड है, अगर चाहो तो नोट डाउन कर लो, अदरवाइज तुम्हें अगर समझ में आ गया देन देयर इज नो
प्रॉब्लम, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं, बट मैं फिर भी तुम्हें यहाँ पर लिखा देता हूँ, विच वॉज दिस इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तब इक्वेशंस तुम्हारी होती है डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। और जब नो सॉल्यूशन होता है देन इनकंसिस्टेंट। अगेन ये सारे बुकिस वर्ड हैं, इंपॉर्टेंट ये है तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और जब यूनिक सॉल्यूशन होता है देन इक्वेशंस आर इंडिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। तो नोट डाउन दिस थिंग, जस्ट इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ग्राफ के साथ चीजें समझ में आनी चाहिए, कब सॉल्यूशन है, कब यूनिक सॉल्यूशन है, कब नो सॉल्यूशन है, एंड व्हेन देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फॉर साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, so simultaneous, to have infinite simultaneous solutions what should be the value of, so infinite solution के लिए coefficients का ratio ले लेते हैं and all these need to be equal, that is 9 upon k and this is 12 upon m। यहाँ से देखो निकल आएगा m का वैल्यू आ जाएगा -48 एंड k का वैल्यू आ जाएगा -36। इफ यू ऐड दीज, अगर ऐड करोगे तो -48 -36 और डेट इज 1484, -84 will be your answer, right? Okay, और now let's see the, अब इसमें का लाइक मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा सकता है एंड इट हैज बीन आस्क्ड इन कैट 2003, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट फाइंड द वैल्यू ऑफ एम क्यू इफ दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो कैसे हैंडल करेंगे, 2 वाला तो तुम्हें समझ में आ गया, 2 इक्वेशंस होंगे तो सिंपल है, इक्वेशंस के रेशियो देखो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का एंड कांस्टेंट का, यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। बट अगर 3 वेरिएबल की इक्वेशन से तो कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, अगर तुम्हें 3 वेरिएबल के इक्वेशंस को हैंडल करना है, फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट दीज इक्वेशंस इनटू 2 लीनियर इक्वेशन। तो व्हाट वी कैन डू, देखो ये 3 इक्वेशन है तुम्हारी, जिस इक्वेशन में तुम्हारा ये अननोन नहीं है, जैसे m और q है यहाँ पर, जो इक्वेशन में अननोन नहीं है, जिस इक्वेशन में लाइक अगर सपोज इक्वेशन का फॉर्म ये है, इक्वेशंस का फॉर्म ये है जिसमें तुम्हें a b c k की वैल्यू पता है, उस इक्वेशन को बेस वैल्यू ले लो। हम इक्वेशन को बेसिकली रिड्यूस कर रहे हैं 2 वेरिएबल में, तो उसको देखो कैसे करते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, अगेन इन टर्म्स से मत डरना, रिड्यूस कर रहे हैं साइमल्टेनियस, लाइक डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है तुम्हें समझ में आना चाहिए कब कहाँ पर क्या हो रहा है। अगर सिंपल टर्म्स में समझो तो सिर्फ नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जाते हैं, डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, है ना, तो उनसे कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल फोकस रखना है तुम्हें कि कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ रहा है सिंपल भाषा में। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मैं रेफरेंस इक्वेशन बोलते हैं, रेफरेंस इक्वेशन लूंगा एंड आई विल ट्राई टू रिमूव वन वेरिएबल फ्रॉम हियर, और वो वेरिएबल हटाओ जिसके कोफिशिएंट पता हूं। अब देखो x वो वेरिएबल है जिसके कोफिशिएंट्स मुझे पता है दोनों इक्वेशन में, तो आई विल रिमूव x फ्रॉम दीज इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इक्वेशन। कैसे, अब अगर सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन में -4x प्लस 3y माइनस mz इक्वल्स टू 3, ये है तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। नाउ अब मैं क्या करूं, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मल्टीप्लाई करके मैं यहां पर लिख रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है एंड ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन, एंड देन आई ऐड दिस विद द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में मैं इसे ऐड कर दूं, so this get cancelled, this 7y and this is your z, 8 minus m, this is your 1, so this is your new equation, this is your reduced equation। हमारे काम की बस ये इक्वेशन है, ये और एक और अभी इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। नोट डाउन दिस इक्वेशन, सिमिलर थिंग डू विद द थर्ड एंड फर्स्ट इक्वेशन। अब वो थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे,
अब इसका देखो कोफिशिएंट 12 है, इसका 6 है, तो इसका 12 बनाने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So multiply first equation with the 6. So that is 12x and 12y. 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो दिस इज माइनस. फिर क्या करना है, दोनों का लाइक साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट. नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन. तो माइनस माइनस साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, दिस गेट कैंसल्ड. तो y 12 minus q and this is 37z and this is 1468. So write this equation, 12 minus q plus 37z equals to 8. Now these are the two equations. अब ये तुम्हारी मैंने इक्वेशंस रिड्यूस कर ली हैं. अब टू अननोन में इक्वेशन तुम्हारी रिड्यूस हो गई है. नाउ अगर इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो सेम सिचुएशन लगा दो, सेम कंडीशन लगा दो जो अभी तक हम करते आए हैं. दैट इज इनके कोफिशिएंट्स इक्वल कर दो. ये जो दो इक्वेशन, ये फाइनल इक्वेशन है, ठीक है, इसको ए और बी ले लो, ए और बी इक्वेशन. दिस इज 37 एंड दिस इज 1/8. यहाँ से तुम्हें एम और क्यू का वैल्यू मिल जाएगा. तो क्यू का अगर वैल्यू निकालें तो दिस इज 8756. मैं इसको और इसको यूज कर रहा हूँ. 8756 इक्वल्स टू 12 माइनस क्यू. तो क्यू इक्वल टू 12 सपरेट करोगे तो 44 आई थिंक, -44. अगेन कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर कहीं पर मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट में बता देना. यहाँ से m निकालते हैं तो 864 माइनस 8m इक्वल टू 37. तो 8m इक्वल्स टू 64 माइनस 37, दैट इज 7 एंड दैट इज m equals to 27/8. So these are the answers that we are getting. Again कैलकुलेशन चेक करना, अगर मिस्टेक हो तो मुझे कमेंट में बता देना, बट कॉन्सेप्ट वाइज एवरीथिंग इज फाइन. ओके, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन फ्रॉम CAT 2003. One of the following condition must x, y, z satisfy so that the following system of linear equations, simultaneous equations have at least one solution such that x plus yg not equals to 0. Okay, so there are three equations है ना. ए बी सी यहाँ पर तुम्हारे वेरिएबल्स हैं और एक्स वाई जी तुम्हारा कांस्टेंट है. तो यू नीड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड. सो ये कैट 2003 का क्वेश्चन है. तो अगेन सेम प्रोसेस करेंगे. पहले इक्वेशन 3 इक्वेशंस को 2 इक्वेशंस में रिड्यूस करते हैं. तो उसके लिए किसी भी एक इक्वेशन को बेस ले सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज सारे कोफिशिएंट हमें नोन है. तो मैं इसमें क्या करता हूँ, लेट्स से कोई भी इक्वेशन हम रेफरेंस ले सकते हैं. लेट्स टेक दिस इक्वेशन एज अ रेफरेंस. एंड अगेन वी कैन रिड्यूस एनी लाइक वेरिएबल, किसी ए बी सी में से किसी भी वेरिएबल को हटा सकते हैं. तो लेट मी रिमूव ए को रिमूव करके 2 इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है. सो लेट्स टेक फर्स्ट इक्वेशन. अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूँ और सेकंड इक्वेशन को लेता हूँ, तो आई नीड टू मल्टीप्लाई. पहले ए के कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और y को रिड्यूस कर दो. तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो दिस इज 21 से 8, तो दैट इज 13 एंड दिस इज 14. 2x माइनस 3y. तो -13b प्लस 14c इक्वल्स टू 2x माइनस 3y. तो दिस इज ए इक्वेशन. इसको ए इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं. अब सिमिलरली बी इक्वेशन फाइंड करते हैं सेकेंड इक्वेशन से और थर्ड इक्वेशन से, और दोनों में ए को रिड्यूस करते हैं. ए को रिड्यूस करते हैं. तो अगर ए को रिड्यूस करोगे तो ये 5 है 2 है, तो दोनों को 10 बनाना पड़ेगा. तो सेकेंड को 5 से मल्टीप्लाई करो. सेकेंड को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. सेकेंड इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड थर्ड इक्वेशन को, ये y होगा ना, 35y. थर्ड इक्वेशन को 2 से कर दो. थर्ड इक्वेशन को 2 से कर दो. नाउ सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन. दैट इज 39b
minus 42c equals to 5y minus 2z. This is our B equation. 39b and minus 42c equals to 5y minus 2z. This is B equation. अब A और B को यूज करके हमें क्या निकालना है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन. तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं. एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होना चाहिए, कंसिस्टेंट इक्वेशन होनी चाहिए, दैट मे बी इंडिपेंडेंट और मे बी डिपेंडेंट कंसिस्टेंट. तो पहले इनके हम कोफिशिएंट्स के रेशियोज लिखते हैं. दैट इज माइनस 13 अपॉन 39 एंड 14 अपॉन माइनस 42 and this is 2x minus 3y on 5y minus 2z. Now if you check this, same situation आ रहा है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं. If these two are equal, then to this equation to have a consistent need to have infinite solution. तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे. So this is minus 1/3 है ना, minus 1/3. So equals to minus 1/3. So this is 6x minus 9y minus 5y plus 2z. So 6x and minus 4y हो जाएगा minus 2z. So this is 2 कॉमन है. 3x minus 2y minus z equals to 0. So this is your solution. Again कैलकुलेशन चेक कर लेना, अगर कहीं मेरी अच्छा ऑप्शन मैच कर जा रहे तो आई थिंक दिस इज फाइन. दिस विल बी योर सॉल्यूशन. अगेन कैलकुलेशन चेक कर लेना अगर कहीं पर मिस्टेक हो, बट फ्रॉम माई साइड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू लाइक सो दैट देयर इज नो कैलकुलेशन मिस्टेक. माइनस माइनस प्लस हो गया था. दिस इज 9. ठीक है. सो दिस विल बी योर आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड. एंड सिंपल जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के आते हैं. इनफाइनाइट करो, कंसिस्टेंट करो, इनकंसिस्टेंट करो, यूनिक करो. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन. आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू. तो मेक श्योर अपने प्रॉपर नोट्स बना लो एंड डू क्वेश्चंस फ्रॉम अ बुक. कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो. तक्षशिला की बुक से कर सकते हो, टाइम के मटेरियल से कर सकते हो. फॉलो एनी स्टैंडर्ड बुक. तो मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल एज ग्रुप. दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आई होप यू हैव लाइक द वीडियो ऑलरेडी एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. आई एम अपलोडिंग complete quant free and this is I think happening first time any quant 100 percentiler is uploading free quant content on YouTube. So make sure you watch that and join our telegram like this Facebook group also. So that's it for today. Let's see you in the next session.